لیکن کبھی کبھار تو گھر جانا چاہیے، آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے۔ السلام علیکم سوچ ٹی وی کے ناظرین، ایک ادبی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ 18 جنوری 2025 بروز ہفتہ ممتاز شاعر ادیب دانشور جناب مرتضیٰ بیگ برلاس صاحب کے دولت کدے پر ان کے جنم دن کی مناسبت سے ایک شعری نشست کا اہتمام کیا گیا۔ اس یادگار تقریب کے مہمان خصوصی ممتاز شاعر ادیب ماہر تعلیم چیئرمین قومی ترانہ فاؤنڈیشن جناب پروفیسر ڈاکٹر عزیز احمد ہاشمی صاحب تھے۔ اس یادگار شعری نشست کی صدارت ممتاز شاعر ادیب جناب مرتضیٰ بیگ برلاس صاحب نے فرمائی۔ جن شعراء کرام نے اس خوبصورت محفل میں اپنا کلام پیش کیا، ان میں جناب قیوم طاہر، جناب طارق نعیم، جناب حسن عباس رضا، جناب کرنل ارشد مرشد، جناب عارف فرہاد، جناب ایوب جوزف، جناب مبشر سلیم بشر اور نظامت کے فرائض ممتاز شاعر ادیب ریڈیو براڈ کاسٹر جناب نصرت یاب خان نصرت صاحب نے بخوبی سر انجام دیے۔ اس خوبصورت شعری نشست کے بعد جناب مرتضیٰ بیگ برلاس صاحب کی سالگرہ کا دن منایا گیا اور کیک کاٹا گیا۔ تقریب کے بعد خوش ذائقہ عشائیہ پیش کیا گیا۔ جناب مرتضیٰ بیگ برلاس صاحب 91 برس کے ہو چکے ہیں۔ اہل ادب ان کے لیے صحت اور تندرستی کی دعا کرتے ہیں۔ ترویج ادب کے لیے سوچ ٹی وی کو لائک کیجیے اور اپنے احباب کے ساتھ شیئر کیجیے۔ یہ آج ہی ختم کرنا ہے پورا آپ ہی کے لیے۔ بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا۔ محفل تو بہت ہی ماشاءاللہ زوردار تھی، لیکن مجھے سب سے زیادہ جس چیز نے متاثر کی ہے کہ اپنی پیرانہ سالی اور نسازی طبع کے باوجود محترم برلاس صاحب نے جس توانائی کے ساتھ اپنا کلام پیش کیا ہے، اور اتنا کلام کی تو خیر مثال ہی نہیں ہے، لیکن بہت مزہ آیا ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ ان کے ابھی ہوش و ابھی سارے جو ہیں سینسز جو ہے ریفلیکسز جو ہیں وہ اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید زندگی اور صحت اور توانائی عطا فرمائے۔ آمین۔ تھینک یو۔ ممتاز شاعر ادیب جناب حسن عباس رضا صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ کیسا لگ رہا جی آج جو ہے؟ بہت شکریہ۔ آج مرتضیٰ برلاس صاحب کی جو سالگرہ تھی اس کو منانے کے لیے تمام جو احباب یہاں پہ جمع ہوئے، دوست احباب اور شاعر، اور اچھا مشاعرہ منعقد ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی صحت مزید عطا کرے، اور آج کی جو محفل تھی واقعی بہت خوبصورت تھی۔ خوبصورت اشعار سننے کو ملے، برلاس صاحب سے بھی سننے کو ملے۔ بس ہماری دعا ہے کہ وہ سلامت رہیں اور یوں ہی جشن مناتے رہیں۔ آمین۔ تھینک یو۔ You are not aware of this thing. اور جس وقت موجود ہیں ممتاز شاعر ادیب اردو پنجابی کے جناب قیوم طاہر صاحب، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آج جناب مرتضیٰ برلاس صاحب کی سالگرہ کے دن میں کیا کہیں گے کہ کیسی تقریب رہی آج کی؟ بھائی کمال کی تقریب اور کتنے خوبصورت اشعار ہوئے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ برلاس صاحب ماشاءاللہ ہم نے ان کو ہنستے مسکراتے ہوئے اور ان کو کیک کھاتے اور کھلاتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت سلامت رکھے، اور اتنی خوبصورت اشعار جو دوست صاحب آپ تشریف لائے ان کا بھی بے حد شکریہ ادا کروں گا کہ وہ آئے، اور بہت سارے دوست نہیں بھی آ سکے، ہر ایک کی اپنی اپنی مجبوریاں تھیں، لیکن مجموعی طور پر ایک بہت خوبصورت نشست ہوئی۔ تھینک یو۔ خالص والا ہے یہ چلیں جی، کلیپنگ۔
یہ आ गया जी। जनाब आरिफ फरहाद साहब क्या कहना चाहेंगे? जी, बात यह है कि मैंने पहली मरतबा मुर्तज़ा बरलास साहब को अहमद अदीम कासवी साहब के पर्चे फ़नून में पढ़ा था आहा, और वो मेरा इंतहाई इब्तदाई दौर था और इनका वो अरूज का ज़माना था वाह और इनकी गज़लें गाई हुई हमने सुनी। बात यह है कि बड़ा शायर वो नहीं होता जो मशहूर हो जाए, बड़ा शायर वो होता है जिसकी शायरी अपने अहद को लेकर अपनी तहज़ीब को साथ लेकर चलती है वाह और वो तहज़ीब सफ़र करते हुए आने वाले ज़मानों की तहज़ीब के साथ मिलती हुई महसूस होती है। वाह, इनकी शायरी, ये साहिब असलूब शायर हैं, बिलाशुबा बिलाशुबा। इनकी शायरी जो है वो इनकी पहचान बन चुकी है। इनकी लफ्ज़ियात लिसानी एतबार से देखा जाए तो अपने अहद के जितने भी इनके मासे शुअरा थे उनमें लिसानी एतबार से भी इनकी जो इनफरादियत है वो नज़र आती है और तरकीब साजी और रवां दवां बहरें और बड़ी मुश्किल बहरों में भी इन्होंने कलाम लिखा है। तवील बहरों में अक्सर आपने देखा होगा कि शुअरा चंद गज़लें तवील बहरों में लिखते हैं और फिर सारी की सारी वो जो उनकी कुलियात है वो मुख्तसर बहरों में। मुख्तसर बहरों लेकिन मुर्तज़ा बरलास साहब की शायरी मैंने देखी है कि इनकी अक्सरियत जो गज़लों की है वो तवील बहरों में लिखी हुई है और बड़ी चापक दस्ती से। जो ख़ास बात इनके यहाँ मैंने देखा है रूज़ी हवाले से कि इनका जो मिसरा है वो अपनी जगह बड़ा ठक 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 करता चलता है। क्या बात, कहीं पर आपको वो जो ज़ियाफ़ात का सहारा लेते नज़र नहीं आते, कहीं पर इजाफी जो हरूफ गिरते हुए आपको नज़र नहीं आते। तो ये जो खसूसियात हैं ये कम कम शुअरा में होती हैं और हमें खुशी है कि आज इनके 91वें जन्मदिन के मौका पर हम इनके पास मौजूद हैं। सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो, आपका शुक्रिया। व्यूअर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अयूब जोसेफ साहब। आप मुमताज़ रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं, शायर अदीब हैं। क्या कहना चाहेंगे जनाब मुर्तज़ा बरलास साहब की सालगिरह के हवाले से, जन्मदिन के हवाले से? पहली बात तो ये है कि हम खुशकिस्मत है कि हम मुर्तज़ा बरलास साहब के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। आज इनकी 91वें बरस की जो सालगिरह है वो मना रहे हैं और मेरे लिए ख़ास तौर से ये आज की नशिस्त जो है खुसूसी अहमियत की हामिल है कि अपने रेडियो प्रोग्राम में मैं इनकी वो गज़ल जो है आँख बरसी है तेरे नाम मुझे ज़ाती तौर पर पसंद भी बहुत है और मैं वो अपने रेडियो प्रोग्राम में शामिल करता हूँ और ये भी जिक्र करता हूँ बड़े फ़ख्र के साथ कि मैं मुर्तज़ा बरलास साहब से मिल भी चुका हूँ। आज दूसरी मेरी मुलाकात है और हमारे लिए ये बड़ी नेक शाम है आज की कि हम इनके साथ बैठे हैं, कल सालगिरह मना रहे हैं। मेरे सर, आपको नहीं मालूम, मैं इंडिया की ऑल इंडिया रेडियो की भी रेडियो है जी आपने बताया था और पिंडी की भी रेडियो है, पेशावर का भी रेडियो है, वाह बहुत कराची का भी रेडियो, वाह बहुत ड्रामे का मैं हो रहा हूँ। तो आपको सालगिरह की ढेरों मुबारकबाद। अल्लाह ताला आप पर हमेशा मेहरबान मजा है, मतलब ये तो रेडियो तो मतलब हर तरह जी बिल्कुल। वो ताज दूर साथ की मेरी कोशिश है और रेडियो से ही हमने सीखा कि लफ्ज़ कैसे बोलना है। यूसुफ जफर का ज़माना। थैंक यू वेरी मच। हैं जनाब तारिक नईम साहब, मुमताज़ शायर अदीब हैं। क्या कहना चाहेंगे आज की तकरीब के हवाले से? हमें खुशी है कि हम मुर्तज़ा बरलास साहब के ज़माने में रह रहे हैं। आहा, बड़े अच्छे शायर हैं और हमारे अहद के बड़े शायर हैं। कई ज़माने से हम इनको पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं और ये जो गज़ल इन्होंने सुनाई है आज ये कई बार हम सुन चुके हैं। तो आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम इस मौके पे यहाँ पे आए हैं जब इनकी 90 बरस की सालगिरह का दिन है आज। 91 माशाल्लाह भी पिछली दफा 90 में एक शामिल कर लें। हाँ, 90 में एक और शामिल कर लें तो बहुत खुशी की बात है। आते रहते हैं यहाँ पे, लेकिन इस मौके पे आना और ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब सालगिरह का दिन हो। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको सलामत रखे आमीन। और आइंदा भी, अगले साल भी और उससे अगले साल भी, तो इसी तरह हम आते रहें और सालगिरह के दिन
थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ शायर अदीब जनाब नुसरत साहब, एक कह कहे जैसी शख्सियत, हंसती मुस्कुराती। क्या कहेंगे, आप तो हमेशा एंजॉय करते हैं। बहुत enjoy शुक्रिया, कराते मुझे हैं। बहुत क्या मज़ा आया कहेंगे इसलिए आप? कि मैंने कंडक्ट भी किया मुशायरा, और इतनी बड़ी शख्सियत के जो है आज सालगिरह है और इसकी मैंने निज़ामत की है, तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। इस कदर बड़ी शख्सियात तशरीफ़ लाई हैं यहाँ पे, मुक़्तदिर शोरा कराम तशरीफ़ लाए हैं, बहुत उम्दा कलाम सुनने को मिला, और अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि हमने इतनी बड़ी शख्सियत की खुशी के लिए आज ये महफ़िल सजाई। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गिरे एहसास की एक चीज खुल गई आके सामने, जैसे ही वो आया सामने, जैसे ही दिन निकल आया, वो आया सामने जैसे ही रात, वाह वाह वाह। वो आया सामने जैसे ही दिन निकल आया, लगा के कोई भी कहे इस तरह मत करना, और जिसमें सुलगा है तेरी याद में ये धन की तरह। जिसमें सुलगा अपने की पाबंदी। नहीं कबूल तो सिक्का उछाल लेते हैं, लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। बैठे रहोगे दश्त में कब तक हसन रजा, बैठे रहोगे दश्त में कब तक हसन रजा, जीना अगर नहीं है तो मर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। मनाने कौन ये आया है रोज़ने शब से, अंधेरा छा गया हर वो सू बालाए 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 बालाए। वाह, मगर मगर उठा देंगे अगर उन तक न जा पाए। वाह वाह वाह। चीज़ खुल गई आखिर, समझ में आई हदीस हयात। इतनी इतनी वाह वाह।